ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ راکا پوشی کے دامن میں بیٹھ کے ساغر کا یہ شعر پڑھ کے سن کے اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کے دامن میں بیٹھ کے سوچتا ہے تو اس کی سوچ بلند ہوتی ہے، اس سوچ محدود نہیں ہوتی ہے ایک علاقے تک، ایک گاؤں تک، ایک ملک تک، بلکہ اس کی سوچ پورے عالم کی طرف بڑھتی ہے۔ اور یہی سوچ ہے جو خدا نے اپنے انبیاء کے ذریعے منتقل کی ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو اور میری نعمتوں پر غور کرو، تمہیں بلندی ملے گی، تمہیں سرفرازی ملے گی۔ آج یہ جو پرچم سبز ہلالی یہاں پہ لہرایا جا رہا ہے، اس کے دامن میں جو میلہ سجایا گیا ہے، مجھے انتہائی خوشی ہوئی یہاں پہ یہ منظر دیکھ کے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی ہے، اور عموماً قوموں کی ترقی میں ہم دیکھتے ہیں تعلیم پہ اور ہنر پہ جو لوگ توجہ دیتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا گلگت بلتستان کے جو بھی باشعور لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اپنی اولاد پہ، اپنی نئی نسل پہ، تعلیم پہ، ان کی ہنرمندی پر، ان کو اچھا سٹیزن بنانے پر اپنی تمام توجہ انویسٹ کریں۔ ہم نے بہت دکھ اٹھا لیے، بڑی تکالیف اٹھا لی، ہمیں آپس میں مل کے رہنا ہے، تمام مسالک کو، تمام قوموں کو مل کے رہنا ہے۔ اتنا حسین علاقہ ہے، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اتنے پیارے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ان کی تعلیم پہ بھی محنت کریں گے، ان کو پاکستان کے بہترین تعلیمی ان کے شعور ان کو دیں گے، ان کے اچھی کیریئر بنائیں گے، ان کو امپلائبلٹی کے لیے اچھے مواقع دیں گے، اور انشاءاللہ اس خطے کو پاکستان کا نمبر 1 خطہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ جو یہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آنے والا کل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں آنے والے سالوں میں یہاں انٹرنیشنل ٹیموں کو، نیشنل ٹیموں کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اس سے زیادہ خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ کوئی نہیں ہے۔ راکا پوشی کا فٹ ہل ہے، ایک طرف ادھر بھی پہاڑ ہیں، نیچے ویلیز ہیں، اور ٹریکنگ ایکسپیرینس ہے، ایک طرف گلیشیئر ہے۔ کہاں ایک چھت کے نیچے اتنی آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں، اور خوبصورت لوگ ہیں۔ سر ماشاءاللہ آپ یہاں گراؤنڈ میں، نیچرل گراؤنڈ میں آپ کھڑے ہیں، ارد گرد کھلاڑی جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے اس نیچرل انوائرمنٹ سے کیا پیغام دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے جن قدرتی وسائل اور کیا کہتے ہیں خوبصورتی سے نوازا ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ اور میں یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب کو اسپیشلی، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نگر اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس علاقے کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک ایفرٹ کی ہے تاکہ یہ ایک بہترین قسم کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن سکے۔ تو ہماری بھی کاوشیں یہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو پتہ چلے کہ گلگت بلتستان کس قدر کہ خوبصورتی سے مالا مال ہے، اور اس کو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آ سکیں اور اس قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ضلع نگر جہاں دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، وہاں پہ قدرتی حسن کے حوالے سے بھی اللہ نے اس کو بہت سی عنایات سے نوازا ہوا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، اس کو ہم پروموٹ کر لیں اور اس کو ایز اے انڈسٹری یہاں پہ ہم فروغ دیں۔ اس حوالے سے نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم مشن ایک خوبصورت ایسا اثاثہ ہے جس کو میڈیا کے ذریعے پروموٹ کر کے اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹس کے لیے اہل بنانا تھا۔ چیف سیکرٹری صاحب کی اس حوالے سے خصوصی کاوشیں تھیں۔ اس نے وہاں پہ وزٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک میچ رکھنے کے لیے ہمیں ہدایات دیں، اور یہاں پہ میچ رکھنے کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے، جس میں سب سے پہلے ایکسیس کا ایشو تھا۔ اس خوبصورت جگہ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور ہر گاڑی کو یہاں پہ پہنچانے کے لیے روڈ کا مسئلہ تھا۔ پھر الائٹ جو فیسلٹیز تھیں، یہاں پہ جو پلیئرز آئیں گے، جو شائقین آئیں گے، ان کے لیے پانی، واش فیسلٹیز، سیٹنگ ارینجمنٹس، ان کا بھی ایشو تھا۔ تو
वक्त की कमी के अंदर रहते हुए हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम का आइडिया बहुत खूबसूरत है, इसको कामयाब बनाने के लिए हमने अपने टीम के साथ काम करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने का बेड़ा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि 9 अक्टूबर का दिन और आज राकापोशी क्रिकेट कप के नाम से हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। आज दूसरा दिन है। खेल का जो इवेंट है ये लोगों को जोड़ने का बाइस बने, खुशियाँ बांटे और इलाके में अच्छी टूरिज़म और हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर ले। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर अल्लाह ताला का शुक्र है। पैगाम ये है कि हमारा ये वतन, ये मुल्क, ख़ास तौर पे हमारा ये ज़मीन गिलगित बल्तिस्तान ऐसी खूबसूरत है कि दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती। और इस क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के हमने 2 हफ्ते पहले हम आए, हमने कहा यार दुनिया को दिखाएं कि ऐसा ग्राउंड क्या हो सकता है दुनिया में कि नहीं। इससे पहले ये सबको पता हो गवादर में एक स्टेडियम बनाया गया, तो हमने कहा किसी तरह हम उस गवादर के स्टेडियम को बीट कर सकते हैं। तो जब हम इधर आए और हमने कहा ये राकापोशी जो एक अजीम पहाड़ी है, मेरी फेवरेट पहाड़ी है दिल से, वो बैकग्राउंड में हो और एक बॉलर बॉल करा रहा हो या कोई बंदा छक्का मारे और उसकी तरफ जा रहा हो, तो इस व्यू को दुनिया में स्विट्जरलैंड में बीट नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा हसीन गिलगित बल्तिस्तान और हमारा हसीन पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं देख रहा हूँ यहाँ माशाल्लाह से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए हैं, बड़े पुरजोश हैं। पस मंज़र में राकापोशी है, कुदरत का हुस्न है, क्या कहेंगे? जी देखें, आज हम राकापोशी के दामन में इधर क्रिकेट मैच के सिलसिले में जमा हुए हैं और ख़ुशी की बात यह है कि पंजाब से आज हमारी एक टीम आ रही है जो जीबी की टीम से खेलेगी। कल मैच दयामर और नगर का हुआ है, तो ये एक जन्नत नज़ीर स्टेडियम जो है नेचुरल, इसको CS साहब ने डेवलप करने की ठानी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ पंजाब से लोग आएँ बल्कि हमारे फॉरेनर्स भी इधर आएँ, इंग्लैंड से हैं, वेस्ट इंडीज़ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, और हम इसको नेशनल इंटरनेशनल फोरम स्पेस स्टेडियम को, इस खूबसूरत ग्राउंड को हम उजागर करेंगे ताकि हमारी टूरिस्ट भी यहाँ माइल हों और यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ नगर के लिए उसमें भी इजाफा हो। सर यहाँ पे मैं आता हूँ, ज़ाहिर है कल रात को मैं पहुँचा था और यहाँ हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट है। आज देख रहा हूँ आप भी मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है उसकी? फितरत आसान से जवाब है जी। नेचर इज सो रिफ्रेशिंग। आपको इतना बताता हूँ कि कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया तो कुछ लोग कह रहे थे, मतलब मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले कि यार आप इतना अच्छा मुस्कुरा क्यों रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं। तो आई डोंट नो, लाइक आई कांट हेल्प इट, द प्लेस इज सो रिफ्रेशिंग। वो इतनी एनर्जी दे रहा है कि एक ऑटोमेटिक रिस्पांस आ रहा है। ठीक है। सो अराउंड 3 वीक्स पहले मैं यहाँ पे आया था पिस्टन वाले ग्राउंड पे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी पहुंचाई थी। बट द टाइम आई एंटर्ड इट वाज अमेजिंग, लाइक एक डिफरेंट वर्ल्ड थी, डिफरेंट दुनिया थी ये। सो देन वी डिसाइडेड कि एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे कोई मैच होना चाहिए, यहाँ पे लोग आने चाहिए, इस जगह को ओपन अप करना चाहिए। ये राकापोशी जो है, राकापोशी को लोग सारे के सारे रिलेट करते हैं हुंजा के साथ, सही, लेकिन राकापोशी का हक ये है कि उसको नगर के साथ रिलेट किया जाए। एंड दिस विल बी द प्लेस जो हमें सक्सेसफुल करेगा राकापोशी को नगर के साथ रिलेट करने में। तो बाकी दूसरी बात ये ना कि ये जगह इंस्टेंट हिट है, इंस्टेंट हिट। व्हाई? पाकिस्तान इज अ क्रिकेट लविंग कंट्री, वी लव क्रिकेट एंड अपने बचपन से लेके आज तक यू नो हम देखते रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड। मुझे बचपन में न्यूजीलैंड के क्रिकेट ग्राउंड याद है, मुझे इंग्लैंड के ग्राउंड याद है, मुझे पाकिस्तान के ग्राउंड याद हैं। एंड देन यू नो अब हमारी रिसेंट डिस्कवरी गवादर का जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है वो वर्ल्ड फेमस हुआ। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। यू नो राकापोशी का इतना क्लियर व्यू शायद पूरे हुंजा नगर कहीं पे भी नहीं होगा जितना इस जगह पे है। एंड यू नो दिस नेचुरल ग्राउंड, इतना फ्लैट ग्राउंड 8000 फुट प्लस की हाइट के ऊपर आपको मिल जाए, इज अमेजिंग। कुदरत का एक और शाकार, कुदरत शाकार पैदा करती रहती है और कुदरत का एक शाकार है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं कि उस जगह को देखें। मेरा नाम आरिफ अमीन है। मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हूँ। पिछले 20-25 साल से एजुकेशन के सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है। 2 साल पहले मैंने हुंजा में, चूँकि मैं हुंजा में काम के सिलसिले में भी और वैसे भी सैर के सिलसिले में पिछले 20-25 साल से आता रहा हूँ, तो मैंने पिछले 2 साल से हुंजा में एक नेचर रिज़ॉर्ट के नाम से एक जगह बनाई है, एक होटल बनाया है, और मैं यहाँ के लोगों को ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ उसके ज़रिए कि आप बहुत से
बेसिक मटेरियल यूज़ करके यहीं के पॉपुलर दरख्त मैंने इस्तेमाल किए, यहीं का आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत उसके अंदर लेके आया हूँ। उन चीज़ों को लेके आए क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट, स्पेशली जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनको लोकल कल्चर, लोकल फूड, लोकल एनवायरनमेंट, उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और उस वजह से फिर हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसी चीज़ें प्रमोट करें ताकि वो उसको एंजॉय करें, और दूसरा वो नेचर के साथ उसको हम नेचर के अंदर उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें ताकि हम नेचर को भी डिस्ट्रॉय ना करें। दूसरा, मैं ख़ुद एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं एक बर्ड वॉचर हूँ। तो आज जब मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी जगह वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए, मैं गिलगित बल्तिस्तान में मैंने पिछले इस साल एक बर्ड वॉचिंग ट्रिप भी अरेंज किया था। और मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह के और भी बहुत से इको फ्रेंडली, उससे जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ प्रमोट करूँ, जिसमें वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी है, जिसमें बर्ड वॉचिंग है, जिसमें ट्रैकिंग जो कि ऑलरेडी हो रही है, लेकिन कुछ नई चीज़ें मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ मुतारफ़ करवाऊँ। और पाकिस्तान में अब बहुत से लोग जो हैं वो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी, उन्होंने पिछले 10-15 साल में जो मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत से लोगों ने वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर दिया है, बहुत से लोगों ने बर्ड वॉचिंग शुरू कर दिया है। और हमारे पास एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी इस्लामाबाद में है, जिनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के स्पेशली बर्ड वॉचिंग के लिए इन इलाकों में आते हैं। तो मेरी कोशिश ये है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये भी करूँगा कि कुछ स्कूल्स के साथ, चूँकि एजुकेशन से ताल्लुक़ है तो हमेशा बच्चे मेरे जहन में होते हैं, एजुकेशन का वो एस्पेक्ट, चाहे उसको हम को करिकुलर एक्टिविटी करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहें, उनको इंगेज करूं। और मेरी भी एक कोशिश होगी कि मैं बच्चों को किसी तरह एनवायरनमेंट स्कूलों में जाके उनके साथ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करूं, ताकि जो कहते हैं कि आप एनवायरनमेंट की तब रिस्पेक्ट करते हैं जब आप एनवायरनमेंट को समझते हैं। जब आप एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे तो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं कुछ स्कूलों में, कुछ गांव में, कुछ कम्युनिटीज़ में इस तरह के एडवेंचर क्लब्स हैं उनके, उसी में मैं बर्ड वॉचिंग क्लब्स बनाऊं, फ़ोटोग्राफ़ी, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी क्लब्स बनाऊं। तो कोशिश यही है, इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं, साथ देने वाले भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें एंजॉय करते हैं और ख़ुद भी करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इस पे मेरा कंसंट्रेशन रहेगी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का जो विज़न है कि गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज़म के हवाले से प्रमोट करना, तो इसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान साहिब के हिदायत की रोशनी में हमने ज़िला नगर, जो कि खूबसूरती के लिहाज से और टूरिज़म पोटेंशियल के लिहाज से इतना मशहूर नहीं है, जिसकी वजह से नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को इन इलाकों में आने का कभी मौका फराहम नहीं हुआ। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने राकापोशी नेचुरल क्रिकेट स्टेडियम पिसन में हमने ये फ़र्स्ट टाइम ये मैच का इनेकाद किया है, जिसमें कल आपने देखा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नगर और डिस्ट्रिक्ट दियामर की टीम ने बड़ी अच्छी यहाँ पे खेल का मुजाहिरा किया। और आज इसी ग्राउंड के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की टीमों ने आज यहाँ पे खेलना है। बेसिक इन खेल का मकसद यही है कि यहाँ जो अनएक्सप्लोर्ड जो एरियाज़ है या यहाँ का जो टूरिज़म पोटेंशियल है, हम लोगों को दिखा सकें नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। सर माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके जवान चौकस हैं और चारों तरफ कल रात से मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन एक वो अपनी खिदमत इंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों की भी बड़ी ताउन है कि खुसूसन पिसन मेनपन के लोग जो हैं बहुत बड़े हौस मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और आपको पता भी, इल्म भी है कि हमारी जो सिक्योरिटी है दिन रात यहाँ पे अलर्ट हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ये इवेंट जा रहा है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल के लिए भी हम तवक्को कर सकते हैं। राकापोशी की दामन में ये इवेंट हो रहा है। मेरी गुजारिश होगी उन शौकीन हजरात से जो इस मंज़र को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं,
وہ ضرور یہاں تشریف یہاں جو لوگ آئیں گے یقیناً وہ اس امید کو لے کے یہاں سے آگے بڑھیں گے، اس ویژن کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو تعلیم کے ذریعے اور ہیلدی ایکٹیویٹی کے ذریعے ان کی تربیت کریں گے، اور یہی تربیت بنیادی طور پہ علاقے کا نام، ملک کا نام روشن کرنے کا باعث بنے گا۔ فائنل میں سننے میں یہ آ رہا ہے چلاس کی ٹیم اور پنجاب کی کوئی ٹیم یہاں پہ فائنل کھیلے گی۔ انشاءاللہ ہم انہیں داد دینے والے، ان کا حوصلہ بڑھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ آپ بھی یقیناً دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھ کے یہاں کی اس نیچر کو، اس قدرت کو، اس حسن کو آپ محسوس کریں گے، اور اللہ گری کے رحمت کرے پروفیسر حشمت کمال الہامی کا یہ شعر ضرور آپ گنگنائیں گے۔ پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔